بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، جیسے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے تو آپ کے چاچا ابو طالب کی توقعات آپ سے بڑھنے لگی۔ روایات میں آتا ہے چونکہ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جوان ہو چکے تھے تو ابو طالب نے آپ سے کہا، اے بھتیجے، میں ایک بہت غریب آدمی ہوں اور قحط سالی کی وجہ سے اور زیادہ سخت حالات کا سامنا ہے۔ کافی عرصے سے خشک سالی کا دور چل رہا ہے، کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ اپنا کام چلا سکے اور نہ ہماری کوئی تجارت ہے۔ ایک تجارتی قافلہ شام جانے والا ہے، اس میں قریش کے لوگ شامل ہیں۔ قریش کی ایک خاتون خدیجہ بنت خلد شام کی طرف اپنا تجارتی سامان بھیج سکتی ہے۔ جو شخص اس کا مال لے کر جاتا ہے وہ اپنی اجرت اس میں طے کر لیتا ہے۔ اب اگر تم ان کے پاس جاؤ اور ان کا مال لے جانے کی پیشکش کرو تو وہ ضرور اپنا مال تمہیں دے دیں گی، کیونکہ تمہاری امانت داری کی شہرت ان تک پہنچ چکی ہے۔ اگرچہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم شام کے سفر پر جاؤ، یہودی تمہارے دشمن ہے، لیکن حالات کی وجہ سے میں مجبور ہوں، اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں۔ یہاں تک کہہ کر ابو طالب خاموش ہو گئے۔ اب آپ نے فرمایا، ممکن ہے وہ خاتون خود میرے پاس کسی کو بھیجے۔ یہ بات آپ نے اس لیے کہی تھی کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک با اہتمام آدمی کی ضرورت تھی، اور اس وقت مکہ میں آپ سے زیادہ شریف اور باج امانت دار، سمجھدار اور قابل اہتمام آدمی کوئی نہیں تھی۔ ابو طالب اس وقت پریشان تھے۔ آپ کی یہ بات سن کر انہوں نے کہا، اگر تم نہ گئے تو مجھے ڈر ہے وہ کسی اور سے معاملہ طے کر لیں گی۔ یہ کہہ کر ابو طالب اٹھ گئے۔ ادھر آپ کو یقین سا تھا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا خود ان کی طرف کسی کو بھیجیں گی، اور ہوا بھی یہی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلا بھیجا۔ پھر آپ نے کہا، میں نے آپ کی سچائی، امانت داری اور نیک اخلاق کے بارے میں سنا ہے، اور اسی وجہ سے میں نے آپ کو بلوایا ہے۔ جو معاوضہ آپ کی قوم کے دوسرے آدمیوں کو دیتی ہوں، آپ کو ان سے دگنا دوں گی۔ آپ نے ان کی بات منظور فرما لی۔ پھر آپ اپنے چاچا ابو طالب سے ملے، انہیں یہ بات بتائی۔ ابو طالب سن کر بولے، یہ روزی تمہارے لیے اللہ نے پیدا فرمائی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان تجارت لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام میسرہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ روانگی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میسرہ سے کہا، کسی معاملے میں ان کی نافرمانی نہ کرنا، جو یہ کہے وہی کرنا، ان کی رائے سے اختلاف نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب چاچاؤں نے قافلے والوں سے آپ کی خبر گیری رکھنے کی درخواست کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ذمہ داری کے لحاظ سے یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پہلا تجارتی سفر تھا۔ گویا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کام میں بالکل نئے تھے۔ ادھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ ادھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ شروع ہو گیا۔ ایک بدلی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر سایہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شام پہنچے تو بصرہ شہر کے بازار میں ایک درخت کے سائے میں اترے۔ یہ درخت ایک عیسائی راہب نستورہ کے خاندان کے سامنے تھا۔ اس راہب نے میسرہ کو دیکھا تو خانقاہ سے نکل آیا۔ اس وقت اس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درخت کے نیچے ٹہرے ہوئے تھے۔ اس نے میسرہ سے پوچھا، یہ شخص کون ہے جو اس درخت کے نیچے موجود ہے؟ میسرہ نے کہا، یہ ایک قریشی شخص ہے، حرم والوں میں سے ہے۔ یہ سن کر راہب نے کہا، اس درخت کے نیچے نبی کی سوا کبھی کوئی آدمی نہیں بیٹھا۔ مطلب یہ تھا کہ اس درخت کے نیچے آج تک کوئی شخص نہیں بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو ہمیشہ اسے بچایا ہے، اس کے نیچے نبی کے سوا کوئی دوسرا شخص بیٹھے۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے پوچھا، کیا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا،
हाँ बिल्कुल है, और ये सुर्खी उनकी आंखों में मुस्तकिल रहती है। अब नस्तूरा ने कहा, ये वही है? मैसरा ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा और बोली, क्या मतलब ये वही है? कौन वही? ये आखिरी पैगंबर हैं। काश मैं वो जमाना पा सकता जब इन्हें ज़हूर का हुक्म मिलेगा, या नहीं जब इन्हें ज़हूर मिलेगा। इसके बाद वो चुपके से आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। पहले तो उसने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सर को बोसा दिया, फिर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमों को बोसा दिया और बोला, मैं आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता हूँ और गवाही देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वही हैं जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने तौरात में फरमाया है। इसके बाद नस्तूरा ने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में मैं वो तमाम निशानियां देख ली है जो पुरानी किताबों में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नबूवत की अलामतों के तौर पर दर्ज है। सिर्फ एक निशानी बाकी है, इसलिए आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जरा अपने कांधे से कपड़ा हटाएं। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने शानाए मुबारक से कपड़ा हटा दिए। तब नस्तूरा ने वहां मोहरे नबूवत को जगमगाते देखा। वो फौरन मोहरे नबूवत को चूमने के लिए झुक गया, फिर बोला, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के पैगंबर हैं। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी दी थी और उन्होंने कहा था, मेरे बाद इस दरख्त के नीचे कोई नहीं बैठेगा सिवाय उस पैगंबर के जो उम्मी हाशमी अरबी और मक्की यानी मक्का के रहने वाले होंगे, कयामत में होजे कौशर और सिफात वाले होंगे। इस वाक़ये के बाद आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बसरा के बाजार तशरीफ ले गए। वहां आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने माल फरोख्त किया। जो साथ लाए थे वो कुछ चीजें खरीदी। इस खरीदो फरोख्त के दौरान एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कुछ झगड़ा किया और बोला, लात और इज्जा की कसम खाओ। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने उन बुतों के नाम पर कभी कसम नहीं खाई। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये जुमला सुनकर वो शख्स चौंक उठा। शायद वो गुज़श्ता आसमानी किताब का कोई आलिम था और उसने आपको पहचान लिया था। चुनांचे वो बोला, आप ठीक कहते हैं। इसके बाद उसने मायसरा से अलाहिदगी में मुलाकात की। कहने लगा, मायसरा, ये नबी है, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है। ये वही है जिनका जिक्र हमारे राहिब अपनी किताबों में पाते हैं। मैसरा ने उसकी इस बात को जहन नसीन कर दिया। रास्ते में एक और वाक़या पेश आया। सय्यदिना खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा के 2 ऊँट बहुत ज़्यादा थक गए थे और चलने के काबिल ना रहे। उनकी वजह से मैसरा काफिले के पीछे रह गया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काफिले के अगले हिस्से में थे। मैसरा उन ऊँटों की वजह से परेशान हुआ तो दौड़ता हुआ अगले हिस्से की तरफ आया और अपनी परेशानी के बारे में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बताया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके साथ उन दोनों ऊँटों के पास तशरीफ लाए। उनकी कमर और पिछले हिस्से पर हाथ फेरा, कुछ पढ़कर दम किया। आपका ऐसा करना था कि ऊँट उसी वक्त ठीक हो गए और इस कदर तेज चले कि काफिले के अगले हिस्से में पहुंच गए। अब वो मुंह से आवाजें निकाल रहे थे और चलने में जोशो खरोश का इजहार कर रहे थे। फिर काफिले वालों ने अपना सामान फरोख्त किया। इस बार इन्हें इतना नफा हुआ कि पहले कभी नहीं हुआ था। चुनांचे मैसरा ने आपसे कहा, ऐ मोहम्मद, हम सालेहा साल से सय्यदिना खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा के लिए तजारत कर रहे हैं, मगर इतना जबरदस्त नफा हमें कभी नहीं हुआ जितना इस बार हुआ है। आखिर काफिला वापस मक्का की तरफ रवाना हुआ। मैसरा ने उस दौरान साफ तौर पर ये बातें की कि जब गर्मी का वक्त होता था और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने ऊँट पर होते तो 2 फरिश्ते धूप से बचाने के लिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर साया किए रहते थे। इन तमाम बातों की वजह से मैसरा के दिल में आपकी मोहब्बत घर कर गई और यूं लगने लगा
जैसे वो आपका गुलाम हो। दोस्तों कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त मक्का में दाखिल हुए। आप बाकी काफिले से पहले पहुंच गए थे। आप सीधे हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर पहुंचे। वहां उस वक्त चंद औरतों के साथ बैठी थी। उन्होंने आपको दूर से ही देख लिया। आप ऊंट पर सवार थे और दो फरिश्ते आप पर साया किए हुए थे। हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने ये मंजर दूसरी औरतों को भी दिखाया। वो सब बहुत हैरान हुए। अब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा को तिजारत के हालात सुनाई, मुनाफे के बारे में बताया। इस मर्तबा पहले की निस्बत दोगुना मुनाफा हुआ था। हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा बहुत खुश हुई। उन्होंने पूछा, मैसरा कहाँ है? आपने बताया वो अभी पीछे है। ये सुनकर सैयदा ने कहा, आप फौरन और उसके बाद जाइए और उसे जल्द से जल्द मेरे पास लाइए। आप वापस रवाना हुए। हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने दरअसल आपको इसलिए भेजा था कि वो फिर से वही मंजर देखना चाहती थी, जानना चाहती थी क्या अब भी फरिश्ते उन पर साया करते हैं या नहीं। जो ही आप रवाना हुए ये अपने मकान के ऊपर चढ़ गई और वहां से आपको देखने लगी। आपकी शान अब भी वही नजर आई। अब उन्हें यकीन हो गया कि उनकी आंखों ने धोखा नहीं खाया। कुछ देर बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैसरा के साथ उनके पास पहुंच गए। हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने मैसरा से कहा, मैंने इन पर दो फरिश्तों का साया करते हुए देखा है, क्या तुमने भी कोई ऐसा मंजर देखा है? जवाब में मैसरा ने कहा, मैं तो ये मंजर उस वक्त से देख रहा हूँ जब काफिला यहाँ से शाम जाने के लिए रवाना हुआ था। उसके बाद मैसरा ने नस्तूरा से मुलाकात का हाल सुनाया। दूसरे आदमी ने जो कहा था वो भी बताया, जिसने लात और इज्जा की कसम खाने के लिए कहा था। फिर ऊँटों वाला वाकया बताया। ये तमाम बातें सुनने के बाद सैयदा खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने आपको तयशुदा उजरत से दुगना दी, जबकि तयशुदा उजरत से पहले ही दूसरे लोगों की निस्बत दुगना थी। इन तमाम बातों से सैयदा खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा बहुत हैरान हुए। अब वो अपने चचाजात भाई वर्का बिन नौफल से मिली। ये पिछली किताबों के आलिम थे। सैयदा खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने उन्हें जो कुछ खुद देखा और मैसरा की जुबानी सुना था वो सब कह सुनाया। वर्का बिन नौफल उस वक्त ईसाई मजहब से जब ताल्लुक रखते थे, इससे पहले वो यहूदी थे। सैयदा खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा की तमाम बातें सुनकर वर्का बिन नौफल ने कहा, खदीजा अगर ये बातें सच है तो समझ लो मोहम्मद इस उम्मत के नबी हैं। मैं ये बात जान चुका हूँ कि वो इस उम्मत के होने वाले नबी हैं। दुनिया को इन्हीं का इंतजार था, यही इनका जमाना है। प्यारे दोस्तों, यहाँ ये बात भी वाज़ेह हो जाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सैयदा खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा के लिए तिजारती सफर सिर्फ एक बार ही नहीं किया, चंद सफर और भी किए। याद रहे कि सैयदा खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा एक शरीफ और पाकबाज खातून थी। नस्ब के एतबार से भी कुरैश में सबसे आला थी। उन्हें कुरैशी सैयदा कहा जाता था। कौम के बहुत से लोग उनसे निकाह के ख्वाहिशमंद थे। कई नौजवानों के पैगाम उन तक पहुंच चुके थे, लेकिन उन्होंने किसी के पैगाम को कबूल नहीं किया था। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तिजारत के सफर से वापस आए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुसूसियाती देखकर और आपकी बातें सुनकर वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा मुतासिर हो चुकी थी। लिहाजा उन्होंने एक खातून नफीसा बिन्नते मुनिया को आपकी खिदमत में भेजा। उन्होंने आकर आपसे कहा कि अगर कोई दौलतमंद और पाकबाज खातून खुद आपको निकाह की पेशकश करे तो क्या आप मान लेंगे? उनके बात सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कौन है? नफीसा ने फौरन कहा, खदीजा बिन्नते खालिद। आपने इन्हें इजाजत दे दी। नफीसा बिन्नते मुनिया सैयदा खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा के पास आई, उन्हें सारी बात बताई। सैयदा खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने चाचा उमर बिन असद को इत्तारा कराई ताकि वो आकर निकाह कर दे। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चले कि सैयदा खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा की इससे पहले 2 मरतबा शादी हो चुकी थी। उनका पहला निकाह अतीक इब्ने
माइज से हुआ था। उसे बेटी हिंदा पैदा हुई थी। अतीक के फौत हो जाने के बाद सैयदा का दूसरा निकाह अबू हाला नामी शख्स से हुआ। अबू हाला की वफात के बाद सैयदा खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा बेवगी की जिंदगी गुजार रही थी कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से निकाह का इरादा कर लिया। उस वक्त सैयदा की उम्र 40 साल के लगभग थी। सैयदा खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा के चाचा उमर बिन असद वहां पहुंच गए। उधर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी अपने चाचाओं को लेकर पहुंच गए। निकाह किसने पढ़ाया, इस बारे में रिवायात मुख्तलिफ हैं। एक रिवायत ये है कि ये निकाह चाचा अबू तालिब ने पढ़ाया था। मेहर की रकम के बारे में भी रिवायात मुख्तलिफ हैं। एक रिवायत ये है कि मेहर की रकम 12 औकिया के करीब थी। दूसरी रिवायत ये है कि आपने मेहर में 20 जवान ऊँटनियाँ दी। निकाह के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वलीमे की दावत खिलाई और इस दावत में आपने 1 या 2 ऊँट ज़िबा किए।